ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ تلنگانہ میں رات 8 بجے تک دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت، بین ریاستی حمل و نقل پر کوئی پابندی نہیں، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ گوداوری اور کرشنا ندی پر نئے پروجیکٹس کی تعمیر پر امتناع، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کو سینٹرل واٹر کمیشن کی نوٹس، کرشنا واٹر بورڈ کے نئے صدر مقرر۔ تلنگانہ میں غیر موسمی بارش، شہریوں نے لی راحت کی سانس، شہر میں تیز ہواؤں سے بے شمار درخت گر پڑے، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ اور میر عالم ٹینک کے قریب ایک شخص کا قتل، پولیس مخبر ہونے کا شبہ، 2 دوستوں کی کارروائی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے فیصلہ کیا کہ ریاست میں جاری لاک ڈاؤن میں 30 جون تک توسیع کی جائے۔ مرکز کی جانب سے لاک ڈاؤن سے متعلق جاری کردہ حالیہ رہنمایانہ خطوط کے پس منظر میں وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اور دیگر اعلیٰ حکام سے تبادلہ خیال کیا اور یہ فیصلہ لیا کہ مرکز کی جانب سے ان رہنمایانہ خطوط میں دی گئی رعایت پر کنٹینمنٹ زونز کے علاوہ تمام علاقوں میں عمل آوری کی جائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ کنٹینمنٹ زون میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنائیں اور یہ کہ رات کے اوقات میں شب 9 تا صبح 5 بجے تک کرفیو کو بھی سختی سے لاگو کیا جائے۔ دکانات کو رات 8 بجے تک ہی کھلا رکھنے کی اجازت دی جائے اور یہ کہ بین ریاستی سفر پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد نہ کی جائے۔ رات کے اوقات میں دواخانے، فارمیسی کھلے رکھنے کی اجازت ہے۔ سینٹرل واٹر کمیشن نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش حکومت کو نوٹس جاری کی ہے، وہ منظوری کے بغیر گوداوری اور کرشنا ندی پر نئے پروجیکٹس کی تعمیر نہ کریں۔ آندھرا پردیش کے پوتی ریڈی پاڈو اور سنگمیشور لفٹ پروجیکٹ کی تعمیر پر اعتراض کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے سینٹرل واٹر کمیشن سے نمائندگی کی تھی۔ دوسری طرف آندھرا حکومت نے گوداوری ندی پر تعمیر کیے جانے پروجیکٹ کالیشورم پر اعتراض کرتے ہوئے شکایت کی ہے، جس پر سینٹرل واٹر کمیشن نے تقسیم بل کے خلاف دونوں ریاستوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ منظوری کے بغیر کوئی پروجیکٹ تعمیر نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں 4 جون کو کرشنا واٹر بورڈ اور 5 جون کو گوداوری واٹر بورڈ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کے بعد یہ واضح ہوگا کون قواعد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سینٹرل واٹر کمیشن نے کرشنا واٹر بورڈ کمیشن کی صدر نشین کی حیثیت سے اے پرمیشم کو مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے اے پرمیشم کے RMB کے سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ سینٹرل واٹر کمیشن نے فوراً ان احکامات پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس عہدے پر گوداوری واٹر کمیشن کے صدر چندر شیکھر ایریا انچارج کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینیواس نے کہا کہ نئے میونسپل ایکٹ کے تحت گھر اور دکان کے سامنے گندگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار ہے۔ اتوار کے دن 10 بجے 10 منٹ صفائی پروگرام کے تحت بانسواڑہ میں ایک مارکیٹ میں سیوریج نالیوں کا جائزہ لینے کے بعد برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت صاف کرتے رہیں گے اور عوام اس سے خراب کرتے چلی جائے گی، یہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے بلدی چیئرمین اور کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ ایک بار مکمل صفائی کی جائے، اس کے بعد اگر کوئی دکاندار کچرا ڈالے گا اس کی دکان کو مہر بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس پر سختی سے عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف بڑی شاہراہوں پر نہیں بلکہ گلی کوچوں میں بھی سختی سے عمل ہوگا۔ گھروں کے سامنے گندگی پھیلانے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اتوار کے دن دیگر کابینہ وزراء نے صفائی مہم میں حصہ لیا۔
वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर में सीवरेज नालों की सफाई पर जोर दिया। वजीर सत्यावती राठौर ने अपने मकान की सफाई अंजाम दी। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन ने खैरताबाद जोन पर बिरला मंदिर, नौबत पहाड़ कॉलोनी का दौरा करते हुए मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए एटमोलॉजी शोबे के शऊर बेदार प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कॉलोनी वालों को मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए, इससे अवाम को इन्होंने वाकिफ करवाया। तेलंगाना में मकान, अराजी हदबंदी या फिर बड़ी इमारतों की तामीर के लिए 21 दिन के अंदर मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए म्युनिसिपल एक्ट 2019 TSB पास के तरीक़ेकार में मजीद ताख़ीर हो सकती है। 2 अप्रैल से शुरू होने वाले TSB पास कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से तात्तुल का शिकार हो गया है। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर GHMC और दीगर तमाम बलदियात में काम शुरू करने का वजीर बलदिया नज़्म नस्ख के तारक रामाराव ने फैसला किया था। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। बलदी नज़्म नस्ख के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बताया कि इसकी अमलावरी काबीना की मंजूरी के बाद शुरू होगी। TSB पास के जरिए अवाम इमारत की तामीर के लिए मी सेवा, बलदी दफ्तर या फिर अपने मोबाइल के जरिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर मंजूरी दी जाएगी। अगर जानबूझकर ताख़ीर करने पर इसके जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार कानून में है और गलत दस्तावेजात पेश करके तामीरात करने वाले के खिलाफ बगैर किसी नोटिस के इमारत मुनहदिम करने का इख्तियार हुकूमत को हासिल है। TSB पास को 3 जुमरों में तकसीम किया गया है। पहले जुमरे में 75 गज की अराजी पर तामीर करने के लिए कोई मंजूरी की जरूरत नहीं है। अराजी और मिल्कियत नामा दाखिल करना होगा। 500 गज के अंदर अराजी पर तामीर के लिए जरूरी दस्तावेजात दाखिल करने पर 21 दिन के अंदर मंजूरी दे दी जाएगी। 500 गज से ज्यादा अराजी पर तामीर के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत टाउन प्लानिंग शोबे की जानिब से 21 दिन के अंदर अंदर मंजूरी दे दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर पूरम प्रभाकर ने कहा कि मोदी के 1 साल की हुकूमत ने अवाम के दरमियान नफरत फैलाने का काम किया, जिस पर मरकजी हुकूमत बगले बजा रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तलाक सलासा, राम मंदिर, आर्टिकल 370 जैसे कारनामे अंजाम दिए हैं। ये तीनों कारनामे सिर्फ अवाम में नफरत पैदा करने वाले हैं। इस 1 साल में मुल्क की मईशत में कोई सुधार नहीं हुआ, किसानों को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। तेलंगाना तश्कील पर उंगली उठाई गई। तेलंगाना की अवाम के लिए बीजेपी ने क्या किया, इसका जवाब दें। गली में लड़ाई और दिल्ली में दोस्ती की सियासत कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले में सियासत कर रहे हैं। इन्होंने किशन रेड्डी से कहा कि मोदी के 1 साल हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की में क्या रोल रहा है, इस पर व्हाइट पेपर जारी करें। तेलंगाना में 8 जून से दोबारा शुरू होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए अक़लियती अक़ामती स्कूल की कुशादगी 1 जून से होगी। तेलंगाना भर में जुमला 83 स्कूल के 4800 तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। कोविड-19 के क़वायद के मुताबिक जमीनी सतह पर स्कूल्स में किस तरह की तैयारी की गई है, इसके बारे में जानने के लिए बहादुरपुरा बॉयज स्कूल का जायजा लिया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल दबीर अहमद ने 4TV को बताया कि 1 जून ता 29 जून तक स्कूल चलाया जाएगा। 1 जून को बच्चों को तलब किया गया है। कंटेनमेंट इलाके और जिन बच्चों को खांसी बुखार है, इन बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 कवायद को 3 जुमरों में तकसीम किया गया है। सैनिटाइजेशन, डाइट, ट्रांसपोर्ट, हर क्लास में सिर्फ 10 बच्चों को बिठाया जाएगा। इम्तिहानी मराकज को बच्चों के साथ एक स्कॉट टीचर को मुकर्रर किया गया है। बच्चों से मुलाकात की वालिदैन को इजाजत नहीं रहेगी। इन्होंने बताया कि जो वालिदैन अपने बच्चों को रास्त इम्तिहानी मराकज को लाना चाहते हैं, इनको इस बात की इजाजत दे दी गई है। जैसे भी बच्चे 1 जून को इस रेजिडेंशियल स्कूल में आएंगे, उनको बैग्स चेक किया जाएगा। बैग्स थोड़ी देर हॉट सन में रखा जाएगा। उनको थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। हमारे पास 3 नर्स हैं और स्टाफ हैं। सबको जो है उसमें हिस्सा लेंगे और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद एक एक बच्चे को जो है सेपरेट चेक किया जाएगा। जिसको
सिक है, इन्फेक्शन है, फीवर है, ऐसे बच्चों को जो है नहीं लिया जाएगा। जो बच्चे कंटेनमेंट एरिया से आ रहे हैं वो बच्चों को भी जो है हम हॉस्टल में नहीं रखेंगे। फ्रेश होने के बाद एवरी डे 4 to 6 PM स्टडी अवर्स रहेंगे, बाद में थोड़ा रेस्ट देंगे। उसके बाद 8 to 10:30 फिर स्टडी अवर्स रहेंगे, नाइट ड्यूटी रहेंगे। 2 टीचर हर रोज 2 टीचरों को नाइट ड्यूटी अलॉटमेंट करेंगे। एक सब्जेक्ट टीचर होंगे, दूसरे सुपरवाइज करने के लिए एक को टीचर को भी जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं। हर बच्चे को एक बेंच के साथ बिठा रहे हैं। एक रूम में 10 बच्चों का इंतज़ाम कर रहे हैं हम। हमारे पास 35 स्टूडेंट्स हैं, जिसलिए 3 रूम हम अरेंजमेंट कर चुके हैं। 3 रूमों में 3 इंचार्ज टीचर्स को अरेंज करेंगे। वो बच्चों की जो है हिफाजत, सेफ्टी, सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे हॉस्टल में। फिर 29 के शाम में एग्ज़ाम्स होने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ फिर घर जाएंगे। हर सेंटर को एक एस्कॉर्ट टीचर जाएंगे बच्चों के साथ। छोटे ऑटो हो तो 2 बच्चे, बड़े ऑटो के 4 बच्चों का इंतज़ाम कर चुके हैं। और हर बच्चे को जो है डेफिनेटली मास्क और सैनिटाइज़र देंगे और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एग्जामिनेशन लेकर जाएंगे। अगर कोविड-19 रिस्क है समझते हैं पेरेंट्स, तो बच्चों को अपने घर से ला सकते हैं। वही एक अंडरटेकिंग देकर बच्चों को जो है हम एग्जामिनेशन में ले जाएंगे, लाएंगे, पूरी जिम्मेदारी लेंगे। हमारे टीचर्स ऑनलाइन में उनसे कांटेक्ट रहेंगे। ऐसे पेरेंट्स को भी हम परमिशन दे रहे हैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2020-21 के आगाज को कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नजर इत्तला सानी मुलतवी कर दिया। कमिश्नर व सेक्रेटरी बोर्ड सैयद उमर जलील की जानिब से जारी करदा बयान में इंटरमीडिएट कोर्स के तमाम तुलबाए, औलियाए तुलबा, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट एडिट, कंपोजिट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस को मुतल्ला किया गया है कि तालीमी कैलेंडर के मुताबिक नए तालीमी साल का आगाज 21 जून 2020 से होने वाला था। ताहम कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत हाल को देखते हुए इसे अगले अहकामात तक मुलतवी कर दिया गया है। नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। जुनूब मगरबी मानसून की केरला में पीर से होने वाली आमद और जुनूब मशरकी बहर अरब व इससे मुत्तसिल इलाकों में हवा के दबाव में कमी के सबब तेलंगाना के कई इलाकों बशमूल शहर हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हफ्ते तक हैदराबाद गर्मी की सख्त तमाज़त से झुलस रहा था। ताहम इस गैर मौसमी बारिश से शहरियों ने सुकून की राहत पाई है। केरला में मानसून की आमद पर मुतज़ाद इत्तलात दी जा रही हैं। एक इत्तला में बताया गया है कि 2 दिन कबल ही इस रियासत में मानसून दाखिल हो चुका है। ताहम महकमा मौसमियात ने इसे माक़बिल मानसून करार देते हुए पीर से मानसून की आमद की पेश क़यासी की है। तेलंगाना के बारे में कहा गया है कि मानसून जो मुकामी कार्ती मिरग यानी 8 जून से शुरू होता है, अब 3 या 4 दिन की ताखीर से दाखिल होगा। इतवार को हुई तेज हवाओं और बारिश के सबब कई मुकामात पर दरख्त, टीन के शीट्स और बरक़ी वायर गिर गए। चंचलगुड़ा फतेह शाह बाजार में एक दरख्त एक ऑटो पर गिर गया, जिससे ऑटो को शदीद नुकसान पहुंचा। अलबत्ता मौजूदाती तौर पर ऑटो ड्राइवर बच गया। मासाब टैंक, मौसम जाही मार्केट और शहर के दीगर इलाकों में भी जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। शेरलिंगमपल्ली में एक दरख्त गिरने की इत्तला मिली है। शहर में 267 मानसून इमरजेंसी टीमें और 16 DRF टीमें पानी की निकासी और दीगर राहत कारी का काम अंजाम दे रहे हैं। शहर के 10 इलाकों में गिरे हुए दरख्तों की सफाई का काम भी तेजी से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर के दिन भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। शहर के दर्जे हरारत एक दिन में 42 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन ने कहा है कि 30 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स 522 करोड़ रुपए वसूल हुआ है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा वक्त से पहले टैक्स की अदायगी स्कीम पर अवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल सामने आया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बावजूद ये रकम वसूल हुई।
इन्होंने कहा कि इतवार की निस्फ शब 12 बजे तक वक्त से पहले टैक्स अदा करते हुए 5% टैक्स की रियायत हासिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल में आखिर तक 567 करोड़ रुपए वसूल हुए थे। रियासती अक़लियती कमीशन का इजलास सदर नशीन कमरुद्दीन की क़यादत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में लॉकडाउन के दौरान दाखिल की गई दरखास्तों की यकसोई पर जोर दिया गया। सदर नशीन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मार्च की 23 तारीख से मई की 27 तारीख तक जुमला 35 मुकदमात दर्ज हुए हैं। इन्होंने अरकान को हिदायत दी है कि जल्द से जल्द इन मुकदमात की तहकीकात करते हुए रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा एक करारदाद पेश करते हुए कमीशन के सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट तैयार करें। मीडिया समाज का तर्जुमान होता है। अखबारात, टेलीविजन चैनल्स के बाद वेब मीडिया या सोशल मीडिया के नाम पर जिस तरह गैर संजीदा या बेशतर खुद साख्ता लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, इसके बाइस मीडिया की अहमियत अवाम व इंतजामिया की नजरों में घटती जा रही है। इस खुसूस में पेश है 4TV ब्यूरो की ये रिपोर्ट। सहाफत यानी मीडिया एक मुक़द्दस और शरीफाना पेशा समझा जाता है। इस पेशे से वाबस्ता अफराद खुद को समाज के दुख दर्द के लिए वक्फ करते हैं। हुकूमत, आवाम व अवामी क़ायदीन के दरमियान ये पेशा तालमेल का काम करता है, लेकिन हालिया अरसे से ये देखा जा रहा है कि इस पेशे की अज़मत विकार दिन ब दिन पामाल होती जा रही है। पहले अखबारात से वाबस्ता महदूद सहाफ़ी ही बाविकार तरीक़े से सरगर्म हुआ करते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आमद के बाद से इनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ है। सोशल मीडिया, वेब चैनल के बाद अब ये तादाद सैकड़ों में पहुंच गई है। हालांकि मीडिया से इनकी रोटी रोज़ी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस पेशे को ये साइड में रख कर इंतज़ामिया बिलखुसूस पुलिस स्टेशनों पर अपना रुआब जमाते हैं। हुकूमत की जानिब से मुसल्लमा सहाफ़ियों को कार्ड जारी किए जाते हैं। इन कार्ड के हवाले से इन्हें इंतज़ामिया से मराहत भी हासिल होती है, जैसे किसी वज़ीर, ओहदेदार या किसी मजाज अथॉरिटी से मालूमात का हुसूल वगैरह। ताहम सोशल मीडिया या वेब चैनल्स के लिए हुकूमत की जानिब से मुसल्लमा कार्ड की इजराई शायद ही की जाती हो। ये लोग किसी वेब नामी इदारे के शनाख्ती कार्ड मामूली रकूमात की एवज़ ख़रीद लेते हैं, अपनी गाड़ियों पर प्रेस का टैग लगा देते हैं। कर्फ्यू या दीगर हंगामी सूरत में ये इसका पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं। मीडिया के इस सूरत हाल के लिए कौन ज़िम्मेदार है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद ही कोई दे पाएगा। गुज़िश्ता शब मीरालम तालाब के करीब कत्ल का एक वाक़या पेश आया। पुलिस के आला ओहदेदारों ने जाए वाक़े का मुआयना किया। इस वाक़े के हवाले से खुद साख्ता सहाफ़ी पुलिस ओहदेदारों का पीछा करते हुए बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वाज़ेह रहे कि इस पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद से यहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। ताहम मीडिया की ये फ़ौज किसी समाजी फासले के बगैर इस पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हो गई। पुलिस व इंतज़ामिया हमेशा मीडिया के साथ बेहतर सलूक रवा रखता है। ताहम इस पुलिस स्टेशन पर पुलिस के जूनियर ओहदेदार मीडिया की इस भीड़ को यहाँ से दफा होने के लिए कह रहे हैं। कुछ भी नहीं रहते मैं चलो 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 मैं बोला ना कुछ भी नहीं रहते आप लोग ये चलो चलो कुछ भी नहीं रहते मैं चलो 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 मैं बोला ना कुछ भी नहीं रहते आप लोग ये चलो चलो। जो लोग संजीदगी के साथ मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये हालात परेशानी और पशेमानी का सबब बन रही है। काशिफ अली खान के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4TV न्यूज़। दबीरपुरा नूरखां बाजार का SBI बैंक फिर से काम करेगा। चंद दिन कबल एक कांस्टेबल के कोरोना वायरस के मुस्बित पाए जाने पर इस बैंक को बंद कर दिया गया था। बाद में पूरे बैंक को सैनिटाइज किया गया। बैंक में थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम कर दिया गया है। पीर के दिन से बैंक काम करेगा। बैंक में दाखिल होने वालों की अब थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
मुमताज आलिम दीन फिरका महदविया की बरगजीदा शख्सियत हजरत मौलाना सैयद अत्तन शहाब का इतवार की दोपहर अचानक विसाल हुआ। आपकी उम्र 87 साल थी। वो बहरुल उलूम हजरत मौलाना सैयद शहाबुद्दीन अलैह रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद और जानशीन थे। अल्लामा हजरत सैयद नुसरत साहब के नबीरा थे। मुल्क व बैरून मुल्क आपके मुरीदीन मोतकदीन व इरादतमंदों का एक वसी हल्का है। वो मरकजी अंजुमन महदविया के सदर भी रह चुके हैं। मिसाल की इत्तला पर उलमा, मशाइखीन, सरकर्दा शख्सियतों, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में मरहूम की क़यामगाह पहुंचकर फर्जंद व जानशीन हजरत सैयद महमूद शहाब का शफ मियां से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया, जिनमें मजलिस के अरकान असम्बली अहमद बलाला, मोहम्मद मौज़म खान, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा, नुमाइंदे कॉरपोरेटर शेख मोहिउद्दीन अबरार काबिल जिक्र हैं। नमाज जनाजा 1 जून बरोज़ पीर सुबह 7 बजे मस्जिद मौलवी साहब चंचलगुड़ा में अदा की जाएगी। तदफीन कतीरा हजरत बंदगी मियां शाह हजरत रहमतुल्लाह अलैह गढ़ी शाह मीरपेट जिले रंगारेड्डी में अमल में लाई जाएगी। जिले संगारेड्डी में कोरोना वायरस के 6 केसेस मुस्बत पाए गए। जिले संगारेड्डी के चौराहे के इलाके में 3 केसेस जिसमें मियां बीवी और उनकी एक लड़की शामिल हैं, जबकि हथनोरा, जहीराबाद और सदाशिवपेट के इलाके जात में 1-1 केस दर्ज किए गए। सदाशिवपेट ताहाल मज़कूरा वायरस से महफूज था, लेकिन अब वहां सभी इसकी इब्तिदा वहां पे भी हो गई है, जहां बलदिया के वार्ड नंबर 14 में एक ज़ईफ खातून को इस मोज़ी वायरस से मुतासरा पाया गया। जिला इंतजामिया ने मुतासरीन के इलाकों की मुकम्मल नाकाबंदी करते हुए उन्हें रेड जोन करार दिया है और वहां मेडिकल टीमें सरगर्मी से काम कर रही हैं। जिला इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से समाजी और जिस्मानी दूरी बनाए रखें, जो कोरोना वायरस से बचने का बेहतरीन इलाज है। पुलिस के मुखबिर होने का शुबा करते हुए 3 दोस्तों ने एक दोस्त का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 20 साला मोहम्मद अली अब्बास का सैयद सादिक, सैयद साजिद और अजहर ने हफ्ते की रात मीर आलम टैंक के अकबी सड़क पर बुलाकर मुहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज किया है। पुलिस ने बताया है कि ये चारों मिलकर मुख्तलिफ सरक़ी की वारदातों में मुलव्विस थे। हाल ही में पुलिस ने इन चारों की गांजा के इस्तेमाल पर वार्निंग दी थी, जिसके बाद मोहम्मद अली अब्बास पर दीगर 3 दोस्तों ने पुलिस का मुखबिर होने का शुबा करते हुए उसका कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि काले पत्थर ताड़बन के रहने वाले इन तीनों को साउथ जोन टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस हदूद के इलाके लालापेट में पेश आए खौफनाक हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। इतवार की सहपहर के औकात में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। महलूक शख्स की शिनाख्त ना हो पाई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस लॉरी ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। टास्क फोर्स साउथ जोन ने एक बेल्ट शॉप पर छापा मारकर बियर और शराब की बोतलें जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक उसने एक मुस्तदिका इत्तला पर कार्रवाई करके उप्पूगुड़ा साई बाबा नगर के रहने वाले 32 साला सी विश्वनाथ उर्फ चिन्ना को गिरफ्तार किया, जो गैर कानूनी तौर से बगैर लाइसेंस के एक बेल्ट शॉप में पुरानी शराब को ज्यादा कीमत में फरोख्त करता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ अक़साम की शराब और बियर की 120 बोतलें जब्त की हैं, जिसकी मालियत 60 लाख रुपए बताई जाती है। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा शख्स और जब्त शुदा बोतलों को छतरीनाका पुलिस के हवाले कर दिया। एलबी नगर एसओटी और हयात नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 22 लाख रुपए मालियती कपास के नकली तकुम सरबराह करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आउटर रिंग रोड हुदूद के हयात नगर में एम देवेंद्र और जी सागर रेड्डी एम वेंकट रेड्डी के प्रोसेसिंग यूनिट पर धावा करते हुए करीब 1.5 टन नकली तखुम और मुख्तलिफ कंपनियों के 5000 थैले जब्त किए। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस मसरूफ तहकीकात बताई गई है।
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना में रात 8 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाजत, बैन रियासती हमलो नकल पर कोई पाबंदी नहीं, वजीर आला का जायजा इजलास। गोदावरी और कृष्णा नदी पर नए प्रोजेक्ट्स की तामीर पर इम्तना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को सेंट्रल वाटर कमीशन की नोटिस, कृष्णा वाटर बोर्ड के नए सदर मुकर्रर। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश, शहरियों ने ली राहत की सांस, शहर में तेज हवाओं से बेशुमार दरख्त गिर पड़े, दर्जे हरारत में नुमाया कमी। और मीर आलम टैंक के करीब एक शख्स का कत्ल, पुलिस मुखबिर होने का शुबा, 2 दोस्तों की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।